Good morning, dear students. In last session, we have understood about working of goodwill. All goodwill short sums we have completed. Today, one more accounting adjustment, that is how accumulated PL will be distributed. देखो revaluation से लेके same चल रहा है. So same here also. But here, whether there is a profit or a loss accumulated form, it will be distributed to whom? All partners in old ratio. Okay? All partners capital account, all partners capital or current as the case may be, account debit, even retiring partner. Why this is done? So that retiring partner gets the benefit. इस पीएल में उसका भी हिस्सा है, उसको उसका बेनिफिट मिले या जो भी सिचुएशन, ही शुड गेट द रिटर्न्स ऑफ इट. सो दैट्स दिस पोजीशन इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ओके, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू all partners are to be given. If it is a profit, partners capital will be naturally credited. If it is an accumulated loss or deferred revenue expenses, in that case they will be debited. Partners capital will be debited in that case. Accumulated profit के लिए accumulated PL जो भी होगा वो खुद क्या होगा? Debit to partners capital or current account as the method may be. Okay, so in this way accumulated PL, we have to keep this in mind. At the time of retirement, like admission, will be distributed. But in this case, it will be distributed to all partners, including retiring partner. In which ratio? Ratio you must keep in mind. Old ratio. Okay. Next accounting point which is to be dealt in is what? Revaluation. Yes. Like admission, here in retirement also, at the time of retirement, all assets and liabilities are to be revalued. Now, here, what revaluation of assets and liabilities? All assets and liabilities at the time of retirement also will be shown in balance sheet at the which value? New or market value. Okay, उसके लिए जो भी increase decrease है हम show करते हैं. In balance sheet, new value of assets and liability will be represented. So that also will be done. That will also be covered in practical. One more point which has to be taken care note of is how the amount will be paid to the retiring partner. Not at all a problematic. Here, as per the instruction given in the question, it has to be said. If in instruction it is said that it is paid partly, so partly or fully, then fully through cash. But if it is paid partly, the remaining amount of that partner will be kept in firm as a loan. ये बात जरूर नोट करनी है आपको. अगर पेमेंट की कोई भी बात नहीं है तो भी डायरेक्टली जो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा होता है वो लोन करके शो करना होता है. See that only I have written. Unpaid amount is transferred where? To partners loan account. Okay. And if rate of interest of partner's loan is not mentioned, then by default it comes to how much percent? 6%. Just for your knowledge, I am sharing this out. Okay. You must have knowledge about it. In this way, we will practically accumulate all these points. Not only this much, but one more point is practically in main question you will check, that is maintenance of capital. जैसे हमने एडमिशन में मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल की पॉइंट सीखी थी ना, तो यहाँ पे भी मेंटेनेंस जैसे जैसे प्रैक्टिकल सम आएगा हम ये पॉइंट को भी सीखते चले जाएंगे. हाउ द कैपिटल, समटाइम्स दे आस्क यू that how in which proportion they will maintain, how the difference will be transferred, all that information will be given in the question. So that also will be the practically point to be solved. In short, if I tell you that the goodwill related adjustment has to be done, then adjustment relating to revaluation of assets and liabilities has to be done. Then in addition to this, all the notions or all the accumulated PLs are to be distributed. Not only this much, the retiring partner's amount has to be checked in, how it is to be cleared. Okay, how to merge all these effects. Let us start up with the practical question. Practical question से सीखते हैं practical dealings. But
बिफोर गोइंग फॉर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्टेप्स वही बात है जैसे हम लोग पहले भी सीखे हैं। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड ट्रांसफर बैलेंस। ओके, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस। स्टेप 2, सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज को, एडजस्टमेंट्स और इंफॉर्मेशन गिवन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और वी विल गिव इफेक्ट। Okay, that we know. Step 2, it is always like this. On top of it, in this goodwill related adjustment, capital related adjustment, whatever information is to be dealt in, has to be dealt in very carefully. Not only this much, after this, within this also, or यहाँ पे transfer balances even here, then next step is very important. Transfer remaining items जो भी है, रिमेनिंग अकाउंट्स फ्रॉम रीवैल्यूएशन, वेयर बाय रिमेनिंग अकाउंट्स फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। विच बैलेंस शीट? ओल्ड बैलेंस शीट। उसमें से बाकी जितने बचे हैं उनको ट्रांसफर करना है थर्ड स्टेप पे। पर याद रखना, इन दिस अकाउंट्स accumulated PL will be distributed to whom? All partners in which ratio? Old ratio. But all assets and liabilities will be transferred to new balance sheet. Okay, that we have to see at this stage 3. After covering this, we have to go for shutdown. Shutdown process means closing process. आपको ऐसे ही इजी रहेगा तो क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में पहले क्या क्लोज करते हैं? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं एंड ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल। किसको ट्रांसफर करेंगे? जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट। देन इन नॉर्मल सेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्लोज्ड एंड the balance is transferred to where? Balance sheet. And finally balance sheet is closed. Balance sheet is closed. Even we have to see if nothing is mentioned for the payment to be done to the retiring partner, then payment partner's amount is represented as loan. Okay, चलो एक सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 of textbook. How many partners are there? You can check in very nicely here. 3 partners. Dhaval, I'm marking it for you. Kamal and Naval. Okay. Dhaval, Kamal and Naval are partners sharing profit and loss in 2:2:1. Okay. Now here Naval retires. Third partner. Naval retires and his balance sheet is as under. Textbook question 5 it is. Okay, question number 5 of textbook. So here capitals are given, general reserve is there, for investment fluctuation is there, BDR is there, creditors is there, goodwill, all these items we are well versed. Here retirement, here following adjustment are required at the time of retirement. Machine की value ये वो जितना भी. We are supposed to prepare what? We are supposed to even pass journal entries here. We will look into it and necessary accounts and even balance sheet for the firm after the retirement. Okay, so let us see how we can go for it. हम लोग journal entries बाद में पास करेंगे, पहले हम necessary accounts की बात करेंगे। तो मैं necessary accounts की बात करूं तो हम कौन से accounts बनाएंगे? We will prepare revaluation account definitely. Even we will prepare partners capital account. Dhaval, Kamal, Naval तीनों के लिए ओपन किए रहेंगे कॉलम। And the required it is here balance sheet. So we are preparing balance sheet after the retirement. See the formalities. ये तो revaluation partners capital balance sheet में पहले भी आपको बताया है, वापस से रिमाइंड करा रहे। balance sheet as on 31/3/16 but after retirement of whom? After retirement of Naval. We must mention in the balance sheet like this. Okay. So let us start up. Step 1 याद है ना? ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंस। देखो रिवैल्यूएशन का तो कोई बैलेंस नहीं, कैपिटल का ही बैलेंस होता है, हम ट्रांसफर कर दे। बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड
टिक करके लिफ्ट कर देंगे आप। 30, 20, 10 है, तीनों का बैलेंस दिया हुआ है 30, 20, 10 रिस्पेक्टिवली। धवल, कमल, नवल। ओके, this way we have transferred their balances. Let us keep on moving in the question. Second अपन क्या करेंगे? We know very well, that is adjustments are to be solved. Let us check adjustment and whatever the requirement of the question is there. So let's see. First one, value of machine is 25 and value of stock is 5. Check in the balance sheet here. मशीन की कितनी वैल्यू दी है? 20, मीन्स 5000 राइज हो गई, यहाँ पे अभी 25 बोल रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक यहाँ पे 5 बोल रहा है, इन दिस केस इट इज 10, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? स्टॉक तो हमारा कंपैरेटिवली हमारा इधर स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक हमारा कम हो गया। वी मस्ट ऑलवेज चेक इन द क्वेश्चन इवन द एडजस्टमेंट्स गिवन बिफोर वी स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन। अच्छा रहता है कौन से आइटम्स को टिक करके लिफ्ट करेंगे। मशीन और स्टॉक दोनों को हम एक 1 by 1। मशीन अभी 25 है, तो एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट हम इसको मार्केट वैल्यू दिखाएंगे 25। व्हेन वी मेक 20 to 25, 5000 का प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय मशीन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। स्टॉक वाइज वर्सा है, अब स्टॉक 5000 हो गया, सो बैलेंस शीट में 1 इफेक्ट स्टॉक मार्केट वैल्यू पे बताएंगे 5000, और 10 से 5 हो गया तो 5000 का लॉस हो गया, इसके लिए रीवैल्यूएशन में डेबिट। कीप दिस इन माइंड, एसेट डिक्रीजेस सो लॉस, एसेट इंक्रीजेस प्रॉफिट, रिवर्स फॉर द थर्ड चैप्टर में किया लायबिलिटीज। नाउ लेट अस चेक विद वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट नंबर 2 हियर। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000 which is taken up by Naval at this price. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8000 है और नवल ले रहा है। पहले देखो बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है, 10। आप टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन रिफर कर सकते हैं अच्छे से, 10। लेकिन इन्वेस्टमेंट नवल कितने पे ले रहा है? नवल इज टेकिंग एट ₹8000। कितने रुपीज पे ले रहा है वो? 8000। नाउ ये समझने की बात है, हमको इसकी वजह से क्या हो गया है? वैसे तो हमको 2000 का क्या हुआ? लॉस। बट इफ यू चेक इनटू द क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है आपको कितना? 2500। सो इन दिस कनेक्शन ओनली प्लीज चेक दिस आउट वेरी नाइसली। मैं आपको बता रही हूं, आप प्लीज चेक करो। इन्वेस्टमेंट अगर मैं चेक करूं तो यहां पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट गिवन इन बैलेंस शीट वैल्यू क्या है? 10 माइनस डबल कितने पे, पार्टनर कितने पे ले रहे हैं? पार्टनर कौन सा पार्टनर है? नवल, क्योंकि नवल ही ले रहा है हमारे, नवल इज टेकिंग एट 8। तो ओवरऑल 2000 का वैसे क्या हो गया अपन को? लॉस। बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है अपने पास कितना? 2500 का। इस 2500 में से ये लॉस 2000 कवर हो जाएगा, बाकी एक्सेस कितना बचेगा? फंड विल बी टू 500 एक्सेस होगा, एंड दिस 500 फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ये एक्सेस टू लॉस विल बी ट्रीटेड एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहां पे पूरी इन्वेस्टमेंट की पॉइंट अपन सॉल्व कर रहे हैं पीसफुली, आराम से। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या करेंगे? इसको डेबिट। पार्टनर इज टेकिंग, सो पार्टनर विल हैज टू पे द अमाउंट फॉर इट। नवल ले रहा है लास्ट पार्टनर, कॉलम चेक करके डालना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, 2000 का जो लॉस हुआ वो ऑटोमेटिक कवर इन उसमें से हो गया फंड में से। बाकी एक्सेस फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेस है 5000, उसको ओल्ड रेशियो 2:2:1 में, डिस्ट्रीब्यूशन इजी है बेटा इसलिए मैं कर दे रही हूं, 200, 200 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट। कोई लॉस नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन फंड से ये पैसा कवर हो गया है। लेट अस गो फॉर नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3। Amount of 5000 included in creditors is no longer payable.
इजी है, नहीं देना है क्रेडिटर को आपको। पहले देखो है कितने, 15,500 है, अब देना नहीं है आपको कितना, 5,000। फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज अ प्रॉफिट, सो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, इट इज अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है ये हमारा, 5,000। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में क्रेडिटर की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, पहले दिया हुआ है 15,500, 5,000 कम देना है तो 10,500 वी विल शो इन द बैलेंस शीट न्यू वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट। द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रेडिटेड एट 2,000। पहले तो देखो कोई और पहले दिया हुआ है, आज तक कोई वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में और भी चेक करने का नहीं दिया है, अभी क्रिएट करना है कितना, 2,000 का। This 2,000 workman compensation will be definitely an additional expense। तो पहली चीज revaluation में to provision for workman compensation claim account, कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, क्वेश्चन में दिया है 2,000। एक इफेक्ट बिजनेस के लिए खर्चा एडिशनल, दूसरा इफेक्ट अभी तक पे नहीं किया है, प्रोविजन है, बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आप इसको as we will represent it as the balance sheet में provision for workman compensation claim अभी हमने क्रिएट किया just ₹2,000. Okay, this will be reflected in the balance sheet. Let us go for next adjustment. If you check here, adjustment number 5, provision for doubtful debt is to be kept 10%. बढ़िया 10% रखना है। पहले तो देखो डेप्टर्स हैं कितने, देखो डेप्टर्स कितने हैं, 30,000। डोंट चेक ओनली डेबिट साइड, प्लीज चेक क्रेडिट साइड, दिस साइड ऑल्सो, लायबिलिटी साइड फॉर BDR old. Here BDR is given to you, BDR old is given how much, 2,000. 2,000 ऑलरेडी given है। 10% एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं, 10%, कितना, 10। 30,000 का 10% कितना होता है, 3 में से 2 पड़ा है, 1,000 एडिशनल होगा। चलो बैलेंस शीट में पहले रिप्रेजेंट करेंगे, रेडी है सब। सो एसेट में पहले डेप्टर्स में लेके आ जाओ, कोई यू कैन प्रेजेंट दिस 30 माइनस BDR रखना है अभी हमको कितना परसेंट, 10% एज पर एडजस्टमेंट, सो इट विल टर्न आउट टू बी 3,000, आउटसाइड 27,000। बट डोंट फॉरगेट बच्चा की ऑलरेडी हमारा ओल्ड पड़ा हुआ था 2,000, तो एडिशनल यहां पे क्या आएगा, लॉस तो है, टू BDR लिखेंगे कैसे, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड। 3,000 में से 2,000 पहले से पड़े थे हमारे पास, तो अभी कितना खर्चा होगा, खाली एडिशनल एक्सपेंस विल बी ऑफ 1,000 दैट वी विल रिप्रेजेंट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ कम्स द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सिंपल सी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। तो कोई बात नहीं है, गुडविल अगर 40,000 है तो वी विल फाइंड आउट, पहले पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और आगे मूव करेंगे। सो लेट अस डू दिस एडजस्टमेंट। अब भी 40,000 गुडविल की एडजस्टमेंट समझना सब जन अच्छे से। गुडविल ऑफ द फर्म इज 40, तो पहले स्टेप नवल का शेयर, नवल का शेयर कितना होगा, 40,000 इंटू उसका 2:2:1 है, दैट इज 1/5। सो नवल का शेयर आता है रुपीज, यहां पे गुडविल शेयर कम्स टू 8,000 ऑफ नवल। ओके, सेकेंड स्टेप, हियर ओल्ड रेशियो वी नो ऑफ धवल, कमल, नवल। प्लीज ऑल ऑफ यू विल मेक पॉइंट, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है 2:2:1। न्यू के लिए कुछ नहीं बोला है, नवल रिटायर हो रहा है, न्यू के लिए टोटल साइलेंस है। सो ड्रॉप डाउन करेंगे तो न्यू रेशियो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, 2:2, दैट इज 1:1। मीन्स अभी धवल और कमल का न्यू PL क्या हो जाएगा, दिस विल बी देयर न्यू PL। ओके, न्यू PL। नाउ हियर इफ आई से old is equal to new, तो it will be equal to gain even। हमारा मेन पर्पस है टू नो गेन रेशियो।
because once we know this gain ratio, in this gain ratio partners will bear out the amount of goodwill. Amount of goodwill जो देना होता है वो gain ratio में जाएगा. तो in this case here old nothing is mentioned for the gain or proportion or portion. So old automatically becomes new. So when old is equal to new, it is even equal to gain. Now गुडविल की एडजस्टमेंट हम लोग आराम से पास कर सकते हैं. या गुडविल के बारे में हम लोग अच्छे से इसको इक्वल 8,000 दोनों इक्वली बेयर करेंगे तो कितना, धवल भी 4,000 देगा, कमल भी 4,000 देगा. राइट, हमको ये पता है. अभी एंट्री पास कर सकते हैं, सीधी डायरेक्ट एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं. हियर सी, नवल को पैसे मिलेंगे कैपिटल अकाउंट में, सीधा समझना. नवल विल गेट, नवल को इसको पैसे मिलेंगे तो इसका अकाउंट क्या होगा, नवल को पैसे मिलेंगे तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000. लेकिन कौन कौन दे रहा है, 4,000 इसको दे रहा है धवल. तो लिखेंगे यहां बाय धवल्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ हियर धवल्स कैपिटल अकाउंट कितना 4 एंड बाय नवल्स कमल्स कैपिटल अकाउंट. कमल भी 4,000 देगा. ओके, सो ये इसको मिलेंगे, इसका अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों देंगे साइमल्टेनियसली. ये धवल और कमल दोनों पैसे इसको पे करेंगे तो इनका अकाउंट डेबिट होगा. लिखेंगे यहाँ पे टू नवल्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप गुडविल. हियर ऑल्सो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गुडविल. क्या है ये चीज, ये कौन सी चीज है, ये गुडविल है. ओके, सो दैट आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो इस केस में. Now, the sum is not over. Only adjustments are complete. We will check out with the remaining items in the. Now, this is, see, first step, transfer balance done. Then, adjustments or information shall give effects हो गए. Now, transfer remaining accounts from old balance sheet. See, PL होगा तो distribute हो जाएगा. Asset liability होंगे तो new balance sheet में जाएंगे और फिर shut down या क्लोजिंग प्रोसेस करेंगे. तो चलो देख लेते हैं. यहाँ पे कैपिटल्स हमने ट्रांसफर कर दिए. जनरल रिजर्व 5,000, जनरल रिजर्व ये क्या है, अक्यूमुलेटेड पीएल. सो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा. बाय जनरल रिजर्व कैसे ट्रांसफर करेंगे आप, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2:2:1. ऑल पार्टनर्स, रिटायरिंग वाले को भी इधर इसका अपना हिस्सा मिलेगा, ये डिफरेंट है वहां से. ओके, एडमिशन से. यहाँ पे नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमने डील कर दिया. बीडीआर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए. इधर देखिए पहला आइटम क्या है, गुडविल. ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है. तो क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे. ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो राइट ऑफ. हमने ये पॉइंट सीखी है. 10,000 रुपीज है. चलो इसको ट्रांसफर, देखो राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, यहाँ पे डेबिट. उनको ये पैसे बेयर आउट करने पड़ेंगे. 10,000 है, कितना इजी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 4, 4 एंड 2 में इनको हम राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आइटम इन बैलेंस शीट, मशीन ऑलरेडी हो गया, इन्वेस्टमेंट नवल लेके गया, डेप्टर्स हो गए, स्टॉक हो गया, कैश बैलेंस है 5,000. कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पैसे मिल रहे हैं और वैसे भी जस्ट 5,000 है. नो इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्टली कैश भी हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. ओके, सो दिस वे आवर सम इज हियर. स्टेप नंबर 3 इज कंप्लीट. नाउ स्टेप नंबर 4 वी विल डू शट डाउन. ओके, बंद करने की कोशिश करेंगे. कितना सिंपल है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 10,000. पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना होता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करी हूं. 10,000 में से 5, 6, 7, 8 गया तो 2 लिखेंगे. 2 आता है, ये पहले किया है पार्टनर्स कैपिटल, बट यहां पे क्या करेंगे हम, ऑल पार्टनर्स. रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, धवल, कमल, नवल. 2,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 में 884. यहां छोड़ नहीं देना है, इसको प्रैक्टिकली ट्रांसफर भी करेंगे और शट डाउन भी कर देंगे. ट्रांसफर दिस अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल. यहां पे डेबिट, रिवैल्यूएशन में डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट. रिवर्स साइड ट्रांसफर होके आता है. बाय रिवैल्यूएशन, चाहे तो ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट. यहां पे 800, 800 एंड 200 रिस्पेक्टिवली
Okay, this way we will write and then total up. इसको कैपिटल को क्लोज करना है, कैपिटल को क्लोज करेंगे, दिस साइड टोटल कम्स टू 30. ऑलवेज okay, let us see this way. Always close retiring. सबसे याद रखना, सबसे पहले retiring partner को ही टच करना चाहिए. In this case if I see here retiring partner का टोटल कितना आ रहा है, अगर आप देखो it comes to 19,500. उसमें से यहाँ पे 10,000 इसके क्या है, 10,000 डेबिट्स हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा 9,500. This 9,500 you will write, nothing is mentioned, तो सीधा Naval's loan account. टोटल साइलेंस है तो पार्टनर का लोन बन जाएगा और इसको प्रैक्टिकली क्लोज भी कर दो. शट डाउन दिस एंड ट्रांसफर इन बैलेंस शीट नवल्स लोन अकाउंट. पार्टनर का लोन अकाउंट आप लेके आएंगे. इन केस nothing is mentioned for the payment, complete amount of retiring partner will be noted down as loan. Now close remaining and transfer their capital to balance sheet. दोनों बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को क्लोज कर दे तो इसका टोटल आ रहा है 33,000. इसका टोटल भी राउंड अप है 23,000 है. डिफरेंस अगर हम निकालें तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड फॉर द वल 25,000 आएगा. इसका 15,000 आ रहा है. ओके, इसको टोटल करके ब्लॉक कर दें 33,000 एंड 23,000. ट्रांसफर दिस, इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में. कैपिटल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ऑफ हुम, ऑफ धवल एंड ऑफ कमल ओनली. 25,000 and 15,000, 10, 20, 30, 40,000 outside. Okay, and then grand total 62,000. बैलेंस शीट को शट डाउन. फाइनली बैलेंस शीट को क्या करेंगे अपन, शट डाउन 62,000 बोथ साइड्स. दिस वे सो सिंपल. एडमिशन आता है तो रिटायरमेंट इजी हो जाता है. वेरी सिंपली वी हैव सॉल्व्ड. वी विल प्रैक्टिस some more with some typical adjustment, even adjustment of capital. Thank you. Please see to it that after this you practice question number 6. Please do homework question number 6 and illustration number 13. Question 6, illustration 13. These two are your homework. Thank you. Meet you in next session. Bye.